स्टार्ट करते हैं। क्या कल की लिमिट में किसी को कोई इश्यू है? मैम काले ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताओ શું કરાય તું કાલે લિમિટ્સ ચલાઈ બકા તો क्या હતો? ઓકે એટલે કજન કામથી બહાર જવું પડ્યું હતું। એક મેસેજ તો ડ્રોપ થાય ને। અરે સોરી એ ભૂલી ગયો કાલ જલ્દી જલ્દીમાં ભૂલી ગયો। ઓકે લિમિટ્સ છે લેક્ચર જોઈ લેજો 2 કલાકનો હતો એટલું બધું બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન નહીં અપાય। એન્ડ દેવેન તને પેલી જે ક્વેરી હતી એમાં એ ક્લિયર થઈ ગઈ? બીજા એક્ઝામ્પલ્સ આપણે એના પછીના કર્યા હતા એમાં સેમ જ હતું? નો ઓકે તો જો બેસિકલી શું કરવાનું હતું આપણે लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x अगर ये लेते हैं हम कि f of x कोई भी फंक्शन है हमारा तो वी विल टेक दैट x minus 0 अगर x टेंड्स टू a है लिमिट x टेंड्स टू a ओके f of x है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x minus a is equals to h ले लेंगे तो which will give us ओके a यहाँ पे चला जाएगा तो x equals to क्या मिलेगा a plus h और h plus a दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। तो हमारी जो ये लिमिट है ओके अब ये क्या हो जाएगी अब x minus a equals to h है ओके और x equals to a plus h है तो x minus a equals to h है तो ये क्या हो जाएगा x minus a tends to a minus a अगर दोनों साइड हम a सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट h tends to 0 यस तो अब हमने ये सपोज किया हुआ है तो हमारी जो लिमिट है वो एक्चुअल में ये लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट h tends to 0 f of h plus a ओके अब a की जगह पे अगर हमारे पास ऑलरेडी ही 0 ही है तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h tends to 0 f of h। अब समझ में आया क्या किया था? મેમ આ રિપીટ કરો છો પડી? अब का एग्जांपल तो જોઈશ એમાં તને ખ્યાલ આવશે શું કરવાનું છે। તો એક્ઝામ્પલ જો દેવેન ને ડાઉટ હતો આમાં એટલા માટે મેં એની માટે આ ખાલી રિવાઇઝ કરાવ્યું। દેવેન ડાઉટ ક્લિયર? મેમ ડાયરેક્ટ x મૂકે તો પણ આન્સર આવી જાય? હા આન્સર આવશે જ પણ જે આપણને કીધું છે કે પ્રૂવ કરવાનું છે તો whenever we have shown that कि prove that कब होता है जब भी हमें डेफिनेशन से करना होता है तब वो प्रूव होता है। तो बाय डेफिनेशन जाने के लिए हमने ये किया है बाकी अगर सिर्फ आपको सॉल्व करना है इवेल्युएट करना है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट ही x की जगह पे a रखना है ओके यस मैम। अब कोई डाउट? मैम हाँ આ રેકોર્ડ થશે આજે? હા આજનો રેકોર્ડ થાય છે અને ગઈકાલનો લેક્ચર બી રેકોર્ડ થયેલો અપલોડ થઈ ગયો છે। ઓકે મેમ કેમ કે આ પહેલો નહીં જોયો તો દિક્કત આવે છે પહેલો નથી જોયો તો ઓકે ઓકે સિમ્પલ છે ઉત્સવ જો શું કરવાનું છે લિમિટ આ તો બાય ડેફિનેશન કરવાનું હતું તો સિમ્પલ વસ્તુ છે આ નોટેશન છે લિમિટની એ તો તને ખ્યાલ છે રાઈટ? હા મને ખ્યાલ છે। ઓકે શું કરવાનું છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ f of x આપ્યું હોય તો x બાય ડેફિનેશન જ્યારે આપણે પ્રૂવ કરવાનું હોય ત્યારે x ટેન્ડ્સ ટુ a છે તો x બંને સાઈડ છે ને a ને સબટ્રેક્ટ કરવાના સો व्हाट विल गेट इज x minus a tends to a minus a from this we get h tends to 0 okay now x minus a is equals to h we have supposed that okay x minus a equals to h this gives us x equals to a plus h so this limit will become this one which is limit h tends to 0 f of h plus a okay now we have to proceed again and final answer जो भी मिलेगा तो वहां पे h इक्वल्स टू 0 रख देना है हमें फंक्शन के अंदर क्योंकि ये लिमिट है हमारी तो जो भी आंसर मिलेगा वो इसकी लिमिट हो जाएगी फंक्शन की ओके बाकी जो डिटेल्स है लिमिट क्या होती है फंक्शन क्या होता है लिमिट कब एग्जिस्ट होती है कब नहीं होती है ये सब हमने कल कर लिया है तो 2 आवर्स का लेक्चर था तो देख लो एक बार फिर डाउट है तो फिर मुझे पूछ लेना क्या क्या ओके मैम ओके मैम। सो नाउ सेक्शन A खत्म हो गया है विल गो विद द सेक्शन नंबर B। मैम हां मैथमेटिकल इंडक्शन जेई में આવે છે? मैथमेटिकल इंडक्शन हाँ हाँ છે एक प्रैक्टिस शीट दो दी ओके विल सेंड यू ओके ओके नेक्स्ट वन सेक्शन बी सेक्शन बी का जो फर्स्ट है which is given one example in each of the following cases
कि f of a does not exist but limit x tends to a f of x exist. ओके तो ये क्या है फर्स्ट वन, उसका फर्स्ट सिंपल से क्या f of a does not exist but limit x tends to a f of x exist. उसका हमें एक एग्जांपल देना है, तो याद है किसी को ये एग्जांपल हमने कल किया है, बोलो क्या होगा, गिव मी द आंसर. x square minus 4 divided by x plus 2. Yes, correct. Limit x tends to limit x tends to 2 x square minus 4 divided by x minus 2. ये हमने कल किया है. f of a मतलब क्या होता है, f of 2 does not exist. f of 2 क्या होगा, 2 square minus 4 which is 4 minus 4 divided by 2 minus 2 which is 0 by 0. This does not exist. Okay, but limit x tends to a f of x does exist. कैसे किया था हमने, यहाँ पे करते थे limit extending to 2 x minus 2 into x plus 2 divided by x minus 2. X minus 2 x minus 2 will cancel out. Now we have limit x tends to 2 x plus 2. क्या x की जगह पे 2 रखेंगे तो what we have is x is equals to 2 plus 2 and it is 4. तो ये जो है वो f of a नहीं है, okay, f of 2 नहीं है but limit does exist for the function. Okay, तो ये जो इसका हमें एग्जांपल देना है f of a does not exist but limit does exist. तो इसका एग्जांपल यही है हमारा the common example. Okay, number 2 is f of a exists but limit x tends to f of x does not exist. ऐसा कोई एग्जांपल, any guesses? f of a exists but limit x tends to a f of x does not exist. कल हमने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का एग्जांपल किया था, याद है? मैंने एग्जांपल क्या किया खबर ना पड़ी लास्ट वाला. सी यहाँ पे क्या है हमें एक एग्जांपल देना है जहां पे f of a मतलब फंक्शन ऑफ a एग्जिस्ट करता है बट लिमिट x टेंड्स टू f of x एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी f of a एग्जिस्ट नहीं करता है बट लिमिट x टेंड्स टू f of x डज एग्जिस्ट एंड इट इज नॉट f of a. ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसा एक एग्जांपल हमें देना है. तो कल काफी सारे एग्जांपल में हमने यही एग्जांपल दिया है, सिमिलरली आज भी यही करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2 किया तो f of x क्या हो गया हमारा, f of x is equals to x square minus 4 divided by x minus 2. ओके तो क्या हो जाएगा 2 square minus 4 divided by 2 minus 2 हो जाएगा हमारा f of a which is 0 by 0. अब 0 by 0 जो है वो कल बात हो गई, वैसे ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है. ओके इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है फॉर्म कहीं पे भी. तो 0 by 0 के लिए हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है कि वो क्या होगा, इसीलिए f of a where a is equals to 2 f of a does not exist but क्या चाहिए कि लिमिट x tends to f of x exist, कि लिमिट जो है वो फंक्शन की एग्जिस्ट करती है. तो हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड की. सो वी नो दैट x square minus 4 is equals to x minus 2 into x plus 2 divided by x minus 2. तो x minus 2 कैंसिल हो जाएगा तो what we have is limit x tends to 2 x plus 2 which is equals to 2 plus 2 and it's 4. समझ में आया? यस मैम. तो जो हमें पूछा गया है वो सेटिस्फाई हो रहा है. वैसे ही हमें यहाँ पे बोलना है कि f of a एग्जिस्ट करता है बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है. बोलो क्या होगा?
एनी आंसर? याद करो 2x माइनस 3 2x प्लस 3 सब हमने कल किया था। एक ये भी था जहां पे हमारा लिमिट फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा था लेकिन लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो रही थी। बोलो। देखो सेक्शन नंबर ए, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 9 उसका फर्स्ट क्या था? लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x where f of x equals to 1 if x is greater than or equals to 0 and f of x is equals to -1 if x is less than 0। तो f of x तो f of a जो है वो तो एग्जिस्ट करता है, बट लिमिट x टेंड्स टू f of x एग्जिस्ट करती है। कल तो हमने किया ये एग्जांपल, कहाँ कुछ ज्यादा आगे जाना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x where f of x is equals to 1 for x is greater than or equals to 0 and f of x equals to -1 where x is less than 0। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी बट हमारा जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया? नंबर 3 f of a and limit x tends to a f of x both exist but they are not equal, but मतलब they are unequal। चलो ये एग्जांपल करो क्या आता है and give me the answer। f of a and limit x tends to a f of x both exist but they are unequal। इसका आंसर मुझे बोलो करके। मॉड्यूलस ऑफ x minus 2 upon x minus 2 लिमिट एग्जिस्ट। फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है ये? डज f of एग्जिस्ट? देखो 0/0 आता है। हमें क्या चाहिए कि f of a भी एग्जिस्ट करता है, लिमिट x टेंड्स टू f of x भी एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है, ऐसा फंक्शन चाहिए। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर तुम लिमिट क्या रखते हो ये भी है, लिमिट क्या होगी x टेंड्स टू
बोलो, x टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 2। तो क्या लिमिट और दोनों इक्वल होगी या अनइक्वल होगा लिमिट और फंक्शन? हमें तो ऐसा चाहिए ना कि दोनों अनइक्वल हो, इक्वल ना हो। सिंपल सा है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेते हैं तो क्या होगा? अगर मैंने इसको डिफाइन किया एज लिमिट x टेंस टू 0 f of x when f of x is equals to x when x is not equals to 0 and 1 or any number, okay, when x is equals to 0 तो हो गया ना, मिला, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ओके, और जो लिमिट होगी वो एट 0 एफ ऑफ ए नहीं होगी क्योंकि एफ ऑफ ए तो 1 है, लेकिन हम एक्स की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो लिमिट क्या मिलेगी हमें? 0। समझ में आया? ऐसे आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि एग्जांपल सिर्फ देना है, तो एनी फंक्शन यू कैन राइट। ऐसे ही सिर्फ चेंज कर दो एट पॉइंट ए, जो हमने ए लिया हुआ है लिमिट वो चेंज कर दो कि ए के ऊपर फंक्शन डिफरेंट है तो हो जाएगा। ऐसे अगर एक्स स्क्वायर भी लेते हो तो क्या फर्क पड़ता है, x इक्वल्स टू 0 के ऊपर ये 1 की जगह 100 रख दो, क्या फर्क पड़ेगा? आंसर विल बी द राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई परफेक्ट आंसर तो चाहिए नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, एग्जांपल ही देना है हमें। ओके, वैसे ही नंबर 4 है f of a and limit x tends to f of x both exist and are equal। exist and equal बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, हमने काफी सारे कर लिए हैं कल। ओके, फिफ्थ वन neither f of a nor limit x tends to f of x exist, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन हमको मिल जाएंगे। ओके, अच्छा हाँ, तो ये कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये जो है नाइदर फंक्शन एफ ऑफ फिफ्थ वन दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, उसके लिए अभी जो अब तुमने कहा था ना मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये करेक्ट होगा। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना ही इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 के लिए। हाँ नाउ एग्जांपल नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स f of x tends to infinity as x tends to a। ये हमने कल कर लिया है, कुछ इतना है नहीं। f of x tends to infinity मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी या फिर इनफाइनाइट तक जाएगी whenever we have limit extending to a। सेकंड वन इज f of x tends to l well as x tends to infinity, उसके लिए भी हमने कल एग्जांपल्स किए हैं, 1 upon x या 1 upon x स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिमिट्स हो जाएगी तो ये आप लिख सकते हो इजीली। एग्जांपल नंबर 3, सो दैट द फंक्शन y is equals to 1 upon x, लिख लेते हैं, so that the function y is equals to 1 upon x into x 2 plus x is equals to 1 minute, sorry my mistake, 1 upon x so that the function y is equals to 1 upon x into 1 plus x whole square minus 1 tends to 2 as x tends to 0
y is equals to 3 upon x square tends to infinity as x tends to 0. क्या करना है, फंक्शन जो है y वो टेंस टू 2 हो रहा है, मतलब उसकी जो लिमिट है वो हमें 2 मिल रही है एज x टेंस टू 0, मतलब x की लिमिट क्या लेनी है हमें, x टेंस टू 0 होगा तो फंक्शन की जो लिमिट है वो हमें मिलेगी 2 एंड y इक्वल्स टू 3 अपॉन x स्क्वायर टेंस टू इंफिनिटी, और अगर फंक्शन 3 अपॉन x स्क्वायर ले और उसकी जो लिमिट है वो x टेंस टू इंफिनिटी, वो उसकी लिमिट हमें मिल रही है इंफिनिटी एज x टेंस टू 0 मतलब हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 1 upon x into 1 plus x whole square minus 1 is equals to 2 and limit x tends to 0 3 upon x square is equals to infinity. हमें ये दोनों चीजें जो है वो प्रूव करनी है कि ये हो रहा है. ओके तो बहुत इजी है. फर्स्ट वन चेक करते हैं क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 upon x 1 plus x होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2. ये प्रूव करना है तो सबसे पहले इतना लेते हैं और इट इज लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 1. तो जैसे कल किया था वैसे ही देखो यहाँ पे क्या है, x टेंस टू 0 है तो ये डिनोमिनेटर ही हमारा 0 हो रहा है. अगर डायरेक्ट 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 होल स्क्वायर इज, देखो साइड में रख के देखते हैं तो 1 प्लस 0 होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 0, ये नीचे x है तो ये क्या हो जाएगा 0 बाय 0, मतलब ये तो होने से रहा. कल ही हमने देखा था अगर 0 बाय 0 होता है तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज तो ये होने से रहा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो उसको कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x. ओके ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, अंदर क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाय x. यहाँ से x जो है ऊपर से कॉमन निकलेगा तो व्हाट वी हैव इज x into x plus 2 divide by x, x cancel हो जाएगा. So now we can put the value of x tends to 0 in the function. So what we have is 0 plus 2 which is equals to 2. Hence we have proved that limit x tends to 0 1 upon x 1 plus x whole square minus 1 equals to 2. देखो हमें पहले क्या मिल रहा था 0 by 0, लास्ट में क्या मिला आंसर 2. Okay, अब हमें सेकेंड चेक करना है लिमिट x tends to 0 3 upon x square. तो दिस विल गिव अस लिमिट x टेंस टू 0 3 अपॉन x स्क्वायर. अब क्या इसका हम कुछ कर सकते हैं, डायरेक्ट ही 0 रखना पड़ेगा विच इज इक्वल टू, अगर ये 1 अपॉन x स्क्वायर भी करें तो भी इसका कुछ नहीं हो सकता. सो आंसर इज 3 अपॉन 0 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी. तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं लिख सकते, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा इंफिनिटी. ओके नाउ नंबर 4, which is evaluate the following limits. Number 1, limit x tends to 1 x square minus 2x plus 3 divided by 3x plus 1. Number 2, limit x tends to 1 x minus 1 divided by 2x square minus 7x plus 5. ये दोनों करो तो एग्जाम्पल आंसर बोलो मुझे क्या आ रहा है.
મેમ हाँ ફર્સ્ટમાં 1/2 આવે છે. फर्स्ट में 1/2. હા 1 minute. हाँ यस મેમ સેકન્ડમાં 0 થાય છે. ना મેમ સેકન્ડમાં 1/7. no, it's -1/3. फैक्टराइज किया यस मैम आ गया -1/3. आ गया ना. ओके नाउ नंबर 3. किसी का बाकी है? नंबर 3 इज लिमिट x टेंड्स टू -2. नेक्स्ट पेज पे करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू -2 x³ + 8 डिवाइड बाय x + 2. क्या होगा? x³ + 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा बोलो? x + 2 into x² प्लस और माइनस माइनस कितना? 2x और 4x. बोलो. 2x प्लस 4. yes. Okay, divide by x + 2. So x + 2 will cancel out. Put the value and tell me the answer. મેમ લાસ્ટમાં ફેક્ટરાઇઝ કરવાનું ને. हाँ. ઓકે આમાં તો 12 આવે છે આન્સર. The answer is 12. Okay, number 4, which is limit x tends to 0, tan x divided by 2x. मैम इंफिनिटी. नॉट पॉसिबल बेटा, इंफिनिटी तो आंसर नहीं आएगा. कल किया ना ये एग्जाम्पल हमने ऐसे. याद है कल किए थे?
क्या करना है, 1/2 कॉमन, लिमिट x टेंस टू 0, tan x डिवाइड बाय x, tan x अपॉन x का फॉर्मूला क्या है 1, सो आंसर इज 1/2, सिंपल। फिफ्थ वन, लिमिट x टेंस टू 1/2, 2x square plus 3x minus 2 divided by 2x square plus 5x minus 3. क्या करेंगे, देखो 1/2 अगर रखते हैं तो 1/2 स्क्वायर विच इज 2/4 प्लस 3/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2/4 प्लस 5/2 माइनस 3, क्या आ रहा है, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 2 प्लस 6 माइनस 8 डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय यहाँ पे भी 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 प्लस 10 माइनस 12 डिवाइड बाय 4, तो 4 4 कैंसल, बट आंसर इज 0/0 विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो ये नहीं होगा, हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा, x टेंस टू 1/2, अब ये देखो क्या होगा फैक्टराइजेशन, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 विच इज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 6k, तो प्लस 6x माइनस 1x माइनस 3, बोलो आंसर क्या आ रहा है, No, 5/7. इट्स 5/7, करेक्ट। बाकी सब कर लोगे ना, 6 7 8 9, No, 5/7 ना। यस इट्स 5/7, 6 7 8 9 कर लोगे ना, ऐसे ही करना है, सभी को फैक्टराइज ही करना है। कुछ अलग तो दिख नहीं रहा है वैसे, फैक्टराइज और सिंप्लीफिकेशन इसी में करना है सब कुछ, तो 6 7 8 9 होमवर्क में लिख देती हूँ, 6 7 8 9 इन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, which is do the following limits exist, if so find their values। लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो उसकी जो वैल्यूज है वो हमें फाइंड करनी है। Okay, first one is limit x tends to 2 1 upon x minus 2। ओके, तो हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट, और फिर देखना है कि उसकी लिमिट क्या आ रही है, और है तो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ओके, सो
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ओके 2 माइनस है मतलब क्या होगा, अराउंड तो हमें 2 ही रखना है, तो 1/x-2 ही होगा, यहाँ पे भी हम -2 रखेंगे, तो क्योंकि हमें यहाँ पे फंक्शन दिया नहीं गया है कि लेस देन 2 के लिए क्या वैल्यू है और ग्रेटर देन 2 के लिए क्या फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन वही का वही है, तो x टेंस टू 2 माइनस क्या हो जाएगा, टेंस टू होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होगा तो 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस ही रखेंगे, अगर मतलब 2 से बहुत छोटी वैल्यू, हमने कल ही देखा था कि 2 माइनस होता है तो क्या होगा 1.9999 समथिंग होगा, वो हमारा 2 माइनस होगा, तो 1.999 माइनस 2 मतलब क्या होगा, अप टू मतलब जीरो ही होने वाला है अल्टीमेटली वो, तो 1/0 क्या हो जाएगा, टेंस टू इंफिनिटी। यस और नो, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो वो हो जाएगा टेंस टू इंफिनिटी। ओके, और फिर अगर हमने x टेंस टू 2 प्लस ले लिया, लेकिन हाँ देखो ये हम माइनस में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा टेंस टू माइनस इंफिनिटी। अब अगर हम कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस में जा रहा है, तो 1/x-2, अब 2 प्लस में वैल्यू कौन सी लेंगे, 2 सॉरी 2.00000 समथिंग 1, तो ये भी नियरली जीरो ही होने वाला है, तो दिस विल टेंस टू इंफिनिटी, एंड लिमिट x टेंस टू 2 1/x-2, तो अगर 2 रखेंगे तो विच इज इक्वल्स टू इंफिनिटी ओनली, विच इज 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, समझ में आया? नाउ नंबर यस मैम। number 2 is limit x tends to infinity 3/x square plus 5 which is equals to, ओके एक्स स्क्वायर तो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में ही है, तो 3/x² प्लस 5 ऐसे ही रखते हैं, मैंने फिर से लिख लिया है, लेकिन अगर x टेंस टू इंफिनिटी रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3/infinity प्लस 5, एंड 3/infinity इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 5। तो अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी माइनस, ओके लेफ्ट हैंड हो गई, तो 3/x² प्लस 5 वो क्या हो जाएगा अगेन 0 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 5। अगर हम राइट हैंड लिमिट ले, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3/x² प्लस 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, क्योंकि हमें इंफिनिटी तो 1/0 तो हमारे पास, या फिर एनीथिंग अपॉन 0 इज infinity, and anything upon infinity is equals to 0, so which is also 5, so yes limit does exist, and it is 5। okay, now देखो हमने जैसे फर्स्ट किया यहाँ पे x-2 था, बिल्कुल वैसे ही नंबर 3 है, which is limit x tends to 0 1/x³। ओके, तो 0 माइनस ले लो, 0 प्लस ले लो, हमें क्या मिलने वाला है माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, कि 1/x³ है, तो 1/infinity अगर x टेंस टू इंफिनिटी होता तो ये डज एग्जिस्ट होता, लेकिन 1/0 है तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा, एंड द आंसर इज नो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नंबर 4 is limit x tends to 1 x-1 whole square divided by x-1 plus x square minus 1। ये ट्राई करो तो खुद, इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो यू कैन ट्राई इट।
मैम 2 આવે છે આન્સર? नो, અરે વન આવે છે વન? नंबर 4 ने હા વન. इट मे बी 0. નથી બનતો 0. नो, आंसर इज 0. યસ મેમ 0 આવી ગયો. आइयो ना. ओके, सो नाउ फिफ्थ वन कर लेना. वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन यू कैन फाइंड इट इजीली. क्या है फिफ्थ वन? लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 1 upon x minus 1 divided by e raised to 1 upon x plus 1. चलो 0 है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जो है 0 माइनस क्या होगा? e नेगेटिव पोर्शन होगा, तो e रेज टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, e रेज टू माइनस इंफिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू माइनस इंफिनिटी प्लस 1 एंड e रेज टू माइनस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें? माइनस 1. नाउ विल गो फॉर द राइट हैंड साइड लिमिट. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e raised to 1 upon x minus 1 divided by e raised to 1 upon x plus 1. तो this will give us क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? e raised to 1 upon x. लेकिन हमारे पास e raised to infinity इसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं है कि बट वी हैव दैट e raised to minus infinity equals to 0. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? e raised to 1 upon x जो है उसको कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 minus 1 upon e raised to 1 upon x डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी e raised to 1 upon x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा? 1 plus 1 upon e raised to 1 upon x. तो e raised to 1 upon x, e raised to 1 upon x कैंसिल हो जाएगा, which is equals to what we have is limit x tends to 0 plus. अब यहाँ पे हमें क्या मिला? 1 minus e raised to minus 1 upon x divided by 1 plus e raised to minus 1 upon x. ये देखो ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो पावर जो है वो माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगी. अब हम x टेंड्स टू 0 रख सकते हैं तो क्या मिलेगा? x टेंड्स ये e रेज टू इंफिनिटी विच इज 0, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 1. अब देखो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो माइनस 1 हो रही है और राइट हैंड साइड लिमिट है वो 1 हो रही है. सो लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट लिमिट, hence limit does not exist. एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो क्या है उसका कोई मतलब ही नहीं है. करेक्ट? समझ में आ गया? नंबर 6.
which is okay 6 में first है a function f of x is defined as follows. F of x is equals to x when x is less than or equals to 2 and it is equals to 4 minus x when x is greater than 2. Find the value of limit x tends to 2 f of x if it exists. Okay? अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है. तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, सबसे पहले एग्जिस्टेंस चेक करेंगे. तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस कि हमारा a तो 2 है ही, f of x इज इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 से लेस देन वैल्यू क्या होती है x which is equals to x. So x की जगह पे 2 रखेंगे तो what we have is answer is 2. Now limit x tends to 2 plus f of x, 2 plus f of x क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to 2 plus greater than 2 के लिए क्या है 4 minus x which is equals to 4 minus 2 and 4 minus 2 is 2. Now limit x tends to 2 f of x equals to 2 के लिए चेक करते हैं, equals to के लिए क्या है x, तो ये हो जाएगा लिमिट x tends to 2 x which is equals to 2. तो ये तीनों की तीनों लिमिट सेम आई एंड which is 2, तो ये हमने एग्जिस्ट की और आंसर इज 2. समझ में आया? यस मैम. तो ऐसे ही नंबर 2 है, वो करो खुद एंड टेल मी द आंसर क्या आ रहा है, which is f of x is equals to 2x plus 1 when x is greater than or equals to 2 and f of x is x when x is less than 2. Same question, check करो, limit x tends to 2 f of x. क्या है आंसर? चलो एक काम करो, ये कंप्लीट कर लेना और एग्जांपल नंबर 7 जो है आप लोगों का वो होमवर्क में हो जाएगा. सेम है, लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट करना है, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो वो भी कर लेना. नाउ आई हैव लेक्चर इन 12th, सो विल मीट ऑन नाउ फ्राइडे.